Hello student, I am Dr. Pankaj Goyal. Today we will discuss eigenvalue, eigenvector and Cayley-Hamilton theorem. These two topics are very important topic a point of view of semester examination. So start from eigenvalue. Let us suppose we have a matrix, square matrix A and a non-zero vector x. If there is equation Ax equal to lambda x is satisfied where x is a non-zero vector. Non-zero vector. And lambda is any number. If lambda satisfied equation Ax equal to lambda x where A is a square matrix and x is a non-zero vector, then lambda is said to be the eigenvalue and x is said to be the corresponding eigenvector. I can write this equation as Ax minus lambda Ix. This is equal to null matrix. So we can write this A minus lambda I x null matrix. If we are saying this vector is a non-zero vector, then we assume that this vector is a non-zero vector, then the rank of this matrix A minus lambda I should be less than order of the matrix. And if the rank of this matrix is less than order of the matrix, in that case determinant of A minus lambda I, this will be equal to 0. Okay, and determinant of A minus lambda I is equal to 0. This is said to be the characteristic equations. This is said to be the characteristic equations. Characteristics equations, and the solutions of this equation is said to be the characteristic roots. Okay, and if we put this lambda here in this equation, the corresponding value will be said to be the eigenvector. Okay, so first we find out determinant of A minus lambda equal to 0 with the given matrix A, right, and that is said to be the eigenvalues and corresponding vector is the eigenvector, right. First we discuss some properties of eigenvalue. Property number 1, the sum of eigenvalue will be equal to trace of the matrix. That means sigma of AII. Sum of diagonal element. The property number 2, product of eigenvalue will be equal to product of eigenvalues will be equal to determinant of A. Property number 3, if A is a matrix and lambda is the eigenvalue, in that case the eigenvalue of A square, that will be equal to lambda square. Okay, how can we derive this one? That Ax equal to lambda x, multiply both sides by A, so we get A square x, that is equal to lambda Ax, and put Ax equal to lambda x, so we get A square x equal to lambda square x. That means lambda square is the eigenvalue of A square. Similarly, lambda ki power n is the eigenvalue of A ki power n. Property number 4, if the eigenvalue of A is lambda, in that case Ka, the eigenvalue of K will be equal to K into lambda. Property number 5, if A is a matrix, if the eigenvalue of A is lambda, in that case eigenvalue of A inverse will be equal to
1 upon lambda, right? Now we take example and then find the eigenvalue and eigenvector. Let us suppose we have a matrix. Take the questions as matrix is given as 2 1 1 0 1 0 and that is 1 1 2. Find eigenvalues and eigenvectors. Okay, find the eigenvalue and eigenvectors. First take this determinant of a minus lambda I, that is equal to 0. 4 characteristic equations. 4 characteristic equation. And the solutions of this can be written as 4 3 by 3 matrix. Lambda cube minus C1 lambda square plus C2 lambda minus C3 equal to 0 if A is a 3 cross 3 and if A is a 2 cross 2 matrix. In that case this equation is lambda square minus C1 lambda plus C3 equal to 0. Okay, you can directly write this one. Where C1, what is the C1? C1 is equal to trace of the matrix. Trace of matrix. What is the trace of matrix? Sum of the diagonal element. You can write this sigma of AII. This is equal to 2 plus 1 plus 2, that is equal to 5. C2. C2 is the sum of minor of AII. डायगोनल एलिमेंट के माइनर का सम. फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट देखिए क्या है हमारे पास. फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है 2. अगर आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दे तो वी गेट दिस वन इज इक्वल टू 1 0 1 2. नाउ टेक द A22. A22 मीन सेकंड रो सेकंड कॉलम इसमें से हटा दीजिए तो क्या बचेगा हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा 2 1 1 2. एंड नेक्स्ट वन ले लीजिए यहाँ पे दिस वन थर्ड रो थर्ड कॉलम. ये थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा दीजिए क्या हो जाएगा मेरे पास 2 1 0 1. वी गेट दिस वन एंड द वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू दिस इज 2 plus 3 plus 2 that is equal to 7. And what is C3? C3 equal to determinant of A. Find the determinant of A with respect to R3. R3 में देखिए क्या हो जाएगा बीच वाली वैल्यू दिस वन. ये एलिमेंट क्या है मेरे पास. दिस एलिमेंट इज A22. A22 मीन्स -1 की पावर 2 दैट इज 1 इंटू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटा दीजिए 4 -1 3 that is equal to 3. So this determinant of this one equal to 3. Okay, we write the equations as characteristic equations. Characteristic equation as lambda cube minus C1 is 5, so write this 5 lambda square. C2 is 7, write this plus 7 lambda minus 3, that is equal to 0. Find the value of lambda using calculator. Scientific, you can use the scientific calculator and find the value of lambda. There you just press the mode function and when the equations come, there is something equations that it is as 1. So press 1. 1 प्रेस करने के बाद जैसे आप 1 प्रेस करेंगे वहाँ पे आएगा नंबर ऑफ अननोन. तो यहाँ पे राइट क्लिक आपको करना है. ये बड़ा सा यहाँ पे कैसे बना होगा ऐसे एरो इसमें लगा होगा यहाँ पे दिस वन. इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिग्री एंड डिग्री में आएगा आपके पास 2 और 3. तो प्रेस आपको करना है क्या प्रेस 3 करने के बाद आपके पास आएगा ए पे आपको क्या करना है फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1
तो यहाँ पे 1 लिख के एंटर प्रेस करना है। सिमिलरली फिर आपको लेना है b आएगा, -5 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे b, साथ में आएगा लिखना है -5, एंटर प्रेस करना है। सिमिलरली आएगा नेक्स्ट आएगा c, आपको यहाँ पे लिखना है 7, एंटर प्रेस करना है। एंड फिर आएगा आपके पास d, और d से आपके पास को रखना है -3, यहाँ पे एंटर प्रेस करना, राइट। जब ये एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ऐसे आएगा यहाँ पे x1, ऐसे आएगा x1। तो x1 आपके पास यहाँ पे आएगा, इस x1 इज इक्वल टू 3। देन आएगा आपका x2 दैट इज इक्वल टू 1, एंड इन दिस केस यहाँ पे आएगा a का मतलब है कि जो लास्ट वाली आइगन वैल्यू है इसको आपको रिपीट करना है। तो यहाँ से वी विल गेट लैम्डा इक्वल टू 3 1 1। अगर मान लेते हैं सिचुएशन ऐसा हो जाए कि x1 आ जाए मेरे पास 3 और उसके बाद आ जाए आपके पास a, तो उस केस में आपका आंसर होगा 3 3 3, 3 बार 3 लिखना है। इफ समवन हियर x1 इक्वल टू 3, लेट अस सपोज आई से x2 इक्वल टू 5 एंड दिस x3 इक्वल टू 5, इन दैट केस दिस वैल्यू इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आएगी? ये वैल्यू हमारी कॉम्प्लेक्स होगी। तो आपको कैलकुलेटर में देखेंगे कि आपके पास इक्वल टू के ऊपर r एंड i लिखा होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट के साथ में इक्वल टू आपको प्रेस करना है, शिफ्ट इक्वल टू। तो शिफ्ट इक्वल टू जब आप प्रेस करोगे तो आपको उसकी इमेजिनरी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लेट अस सपोज वैल्यू आई मेरे पास, लेट अस सपोज 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 + 2i एंड 5 - 2i, लाइक दिस। ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। वी गेट आइगन वैल्यू इक्वल टू 3 1 1। नाउ फाइंड द आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर के लिए सबसे पहले ले लीजिए लैम्डा इक्वल टू 3। पुट करना है किसको, a माइनस लैम्डा आई, दिस x इक्वल टू 0। ए मैट्रिक्स क्या था? ए मैट्रिक्स मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स था, देखिए मेरे पास 2 1 1, ये था 0 1 0, एंड ये था मेरे पास 1 1 2। ये आपका ए मैट्रिक्स था। ए माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की जगह पे यहाँ पे क्या रख दीजिए, लैम्डा की जगह पे 3 रख दीजिए। क्या मैट्रिक्स आ जाएगा? देखिए लैम्डा की जगह 3 रख देंगे, 2 - 3 दैट इज क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ -1 1 1 0 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 0, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 1 -1। वी गेट दिस वन एंड दिस वी गेट x1 x2 x3 and this is equal to 0 0 0। ओके, वी गेट दिस वन। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से जो हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशन से वी विल सिलेक्ट एनी 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन आपको सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने का हमारे पास रूल क्या रहेगा? रूल हमारे पास रहेगा, दोनों इक्वेशन आपकी सेम नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, राइट, आपस में मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, एंड एनी इक्वेशन शुड नॉट बी 0 इक्वेशन, राइट। मैंने क्या कहा आपको, 2 इक्वेशन शुड नॉट बी सेम, शुड नॉट बी डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मीन्स मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर आपको ऐसा पेयर मिल जाए जो कि आपको ऑलवेज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू में एक पेयर आपको ऑलवेज यहाँ से मिलेगा, जिसमें कि हमारा वेक्टर नॉन जीरो आएगा, क्योंकि हमने शुरू में सपोज किया है एक्स शुड बी ए नॉन जीरो वेक्टर। तो हमने क्या किया, लेटेस्ट सपोज पहली 2 इक्वेशन आपने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे केवल कोफिशिएंट लिख लेंगे, -1 1 1 0 -2 0। ये वैल्यू है x1 कॉलम में, ये x2 है, ये x3 है। तो आप इसको ऐसे लिखे x1 अपॉन, फिर यहाँ पे लिख दीजिए x2 अपॉन माइनस ऑफ दिस, एंड यहाँ लिख देते हैं दिस x3 अपॉन दिस वन। ओके, x1 अपॉन, x1 का मीनिंग क्या होगा कि आप इसमें से x1 कॉलम को छोड़ के बाकी की डिटरमिनेंट की वैल्यू बताएं। तो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 0 -2 दैट इज आ गया 2। अब आप बीच वाला कॉलम छोड़ दें, 0 -0 0, एंड थर्ड कॉलम को आप इसमें लेफ्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका +2। जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, इसका लीस्ट इंटीजर की फॉर्म में आंसर आपको लिखना है। तो 202 का लीस्ट इंटीजर हो जाएगा 1 0 1। दिस इज द आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 3। नाउ कम्स लैम्डा इक्वल टू 1। टेक लैम्डा इक्वल टू 1। अब आपने लिया लैम्डा इक्वल टू 1, मैट्रिक्स क्या था मेरे पास,
तो मैट्रिक्स यहाँ पे था, देखिए मेरे पास दिस मैट्रिक्स था हमारे पास 2 1 1 0 1 0 एंड ये था मेरे पास 1 1 2। इसमें अप्लाई कर दें लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1 लगा दीजिए, क्या आ जाएगा बताएं। तो मैट्रिक्स आ गया मेरे पास, दिस वन इज 1 1 1 0 0 0 एंड दिस इज आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 लगाएंगे तो आपके पास दिस 1 1 2 था यहाँ पे, राइट 1 1 2 वैल्यू थी यहाँ पे 1 1 2। तो 1 1 2 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1 1 1 दिस वन। यहाँ पे आ गया x1 x2 x3 एंड दैट इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 0 0 0। वी गेट दिस वन। ओके, ये हमारे पास देखिए आ जाएगी यहाँ से वैल्यू दिस। अब आपको देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ से हमें देखना है कि क्या हमें यहाँ से एक पेयर आपका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपकी जैसे यहाँ पे 1 1 2 आइगन वैल्यू थी, इस केस में पेयर आपको मिल भी सकता है और इट मे बी पॉसिबल कि पेयर हमें ना मिले। वी कैन नॉट सिलेक्ट एनी पेयर। अब देखें फर्स्ट एंड सेकंड, वी कैन नॉट टेक फर्स्ट एंड सेकंड। वाई? बिकॉज सेकंड कॉलम इज 0 कॉलम, वी कैन नॉट टेक दिस वन। नाउ सी फर्स्ट एंड थर्ड, सेम कॉलम सेम रो है, फर्स्ट रो सेम सेकंड रो सेम, दैट मीन सेम। आपको मैंने क्या बताया था, आपको सेम रो नहीं लेना है, आपको 0 रो नहीं लेना है, मल्टीपल रो नहीं लेना, राइट। तो वी कैन नॉट फाइंड एनी 2 independent row and you can check this by the rank. The rank of in that case will be equal to 1. तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसको रैंक के हिसाब से लिखे तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। इसकी पहचान है कि हमारे पास ये आपका नहीं मिलेगा। अगर आप गलती से सिलेक्ट कर ले, इन केस लेटर सपोज हम कहें कि आपके पास वी कैन नॉट फाइंड आउट कि हमारे पास डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, तो उसकी आपके पास क्या वो होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा x1 अपॉन 0 आए, x2 अपॉन 0 एंड x3 अपॉन 0। अगर तीनों के नीचे आपके पास ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, इसका मीनिंग है कि द रो सेलेक्टेड रो विल बी डिपेंडेंट रो। वी हैव टू सेलेक्ट अदर पेयर, हमें एक दूसरा पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप देखिए अगर मैं फर्स्ट 2 सेलेक्ट करें तो 0 0 0 आएगा, फर्स्ट थर्ड सेलेक्ट करें तब भी हमारे पास 0 0 0 ही आएगा। तो इसमें आपके पास क्या होगा, अगर हम ऐसा पेयर सेलेक्ट ना कर पाए, ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये केवल पॉसिबल तभी होगा जब हमारे पास 2 आइगन वैल्यू क्या होंगी, आपकी सेम होगी। तो सेम के केस में 2 केस हमारे पास पॉसिबल है। इट मे बी पॉसिबल वी विल गेट ए पेयर ऑफ इक्वेशन सच दैट इक्वेशंस आर नॉट डिपेंडेंट, राइट। नॉट डिपेंडेंट मीन्स इन तीनों के नीचे 0 ना आए। और दूसरा केस हो सकता है कि आपके पास ऐसा पेयर ना मिले। अगर आपको पेयर मिलेगा तो उस केस में हम जैसे हमने ऊपर यहाँ पे सोल्व किया था, जैसे आप देखें हमने यहाँ पे सोल्व किया था, इस तरीके से हम सोल्व करके बता देंगे। एक ही वेक्टर आएगा, 2 आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग एक वेक्टर आएगा। अगर आपको पेयर ना मिले, अगर पेयर नहीं मिले तो उस केस में हमारे पास एक रूल होता है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, कितने वेरिएबल को आर्बिट्री माने। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, ये जो होंगे आपके पास, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ ए, ये रूल होता है हमारे पास, राइट। नंबर ऑफ वेरिएबल है यहाँ पे 3, रैंक है मेरे पास 1 इक्वल टू 2, दैट मीन्स वी विल सेलेक्ट 2 वेरिएबल एज द आर्बिट्री कांस्टेंट। अब देखिए हम कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 0 ऑब्वियसली बात है 0 रो नहीं लेना है, कोई भी नॉन 0 रो सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट रो आपने सिलेक्ट किया, फर्स्ट कॉलम है x1 का, तो कोफिशिएंट हो गया 1, तो x1 x2 प्लस x3। कहाँ से फाइंड आउट किया, ये जो हमारे एलिमेंट है ये कोफिशिएंट है, ये x1 का कोफिशिएंट है, ये x2 का कोफिशिएंट है, ये x3 का कोफिशिएंट, राइट। दिस इक्वल टू 0। हमें 2 आर्बिट्री लेना है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, तो पीछे लास्ट से सिलेक्ट करें, x3 इक्वल टू k1, यहाँ पे ले लीजिए x2 इक्वल टू k2, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x1 इक्वल टू माइनस ऑफ k2 माइनस ऑफ k1। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, दैट्स द सेम नंबर ऑफ आइगन वेक्टर हम यहाँ से इंडिपेंडेंट फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट विल बी इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेक्टर। इट्स ओके। हाउ कैन वी फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट वेक्टर, तो टेक द
one arbitrary constant as non-zero, let us suppose 1, and second arbitrary last arbitrary constant as 0. एक को आप लेंगे नॉन जीरो, दूसरे को लेंगे जीरो. अब क्वेश्चन ये है कि नॉन जीरो वैल्यू क्या लिया जाए. नॉन जीरो वैल्यू आपको इसके डिवीजन के बेस पे लेना है. यहाँ पे इसका डिवीजन 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिया. 2 होगा तो केवल 2 लेंगे. डिवीजन में 3 आएगा तो केवल 3 लेंगे. और ये वैल्यू को आप इन तीनों इक्वेशन में पुट करके वेक्टर फाइंड आउट करें. देखिए वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, k1 इक्वल टू 1, तो -1, यहाँ से आएगा आपका 0, यहाँ से आएगा 1, तो वेक्टर हो गया -1 0 1. वी गेट दिस वेक्टर. अब इंटरचेंज कर दे. अब ले लीजिए k2 इक्वल टू 1 एंड k1 रेस्ट 0, तो क्या आएगा आपके पास, वी गेट -1 1 0. वी गेट दिस वेक्टर. तो वी गेट दिस 3 वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर हमारे पास यहाँ से फाइंड आउट हुआ था क्या, 1 0 1. वी गेट थर्ड वेक्टर एज 1 0 1. अभी हमने ऊपर देखिए फाइंड आउट किया था, ये क्या था हमारे पास, वेक्टर था 1 0 1. ओके. अब देखिए हमारे पास क्या है कि ये जो मैट्रिक्स बना है, इस मैट्रिक्स को यहां से हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं P, एंड P को हम कहते हैं मॉडल मैट्रिक्स. मॉडल मैट्रिक्स. मॉडल मैट्रिक्स क्या होगा, ये जो आइगन वेक्टर आए इनके कॉलम फॉर्म में एक मैट्रिक्स में लिख दीजिए. तो -1 0 1 -1 1 0 एंड ये हो जाएगा 1 0 1. वी गेट दिस मैट्रिक्स. इस ऐसे मॉडल मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, वी विल से द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मॉडल मैट्रिक्स. ओके. तो मॉडल मैट्रिक्स आने के बाद हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है डायगोनलाइजेशन. एक हमारा होता है डायगोनलाइजेशन. तो डायगोनलाइजेशन में क्या होगा, D विल बी इक्वल टू P इनवर्स AP होता है. P इनवर्स AP, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. दिस इज द डायगोनलाइजेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स, राइट. एंड दिस डायगोनलाइजेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स, इसका जो आंसर होगा वो हमें पता होगा ऑलवेज. डायगोनलाइजेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स में तो आपके इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ये ऑलवेज आएगा आपके पास दिस वन, λ1 0 0 0 λ2 0 0 0 λ3, ये इसका होगा दिस वन. λ1 इसके कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यू, इसके कोरस्पोंडिंग λ2, इसके कोरस्पोंडिंग λ3. यहाँ पे देख सकते हैं ये था 1 1 के लिए, ये था 3 के लिए. तो हमारा जो इसका आंसर होगा, अगर आप मॉडल मैट्रिक्स इसमें यहाँ पे D लिखेंगे तो इस केस में मेरा D जो आएगा वो क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 3 आएगा. इफ यू चेंज दीज आइगन वेक्टर, अगर आप इनके ऑर्डर को चेंज कर दे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ से D फाइंड आउट हो जाएगा. एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस D. एप्लीकेशन देखिए क्या होगा, अगर मान लेते हैं हमें फाइंड आउट करना D स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, D स्क्वायर होगा P इनवर्स AP एंड यहाँ से आ जाएगा आपके पास अगेन P इनवर्स AP. ये दोनों I हो गया, ये हो गया A स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा P इनवर्स A स्क्वायर P. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट D क्यूब. D क्यूब क्या होगा बताए, सेम तरीके से आपके पास D क्यूब हो जाएगा P इनवर्स A क्यूब P हो जाएगा. वो जनरलाइज फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं P इनवर्स A की पावर n P दैट इज इक्वल टू D की पावर n. एंड D की पावर n क्या होता है हमारे पास, अगर हमने D ऊपर वाला मैट्रिक्स सपोज किया है तो D की पावर n हमेशा होगा आपके पास λ1 की पावर n 0 0 0 λ2 की पावर n 0 0 0 λ3 की पावर n. तो हम डायरेक्टली D की पावर n फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फ्रॉम हेयर इफ यू मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लिकेशन बाय P, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय P इनवर्स, वी गेट an इक्वल टू P D की पावर n and this P inverse. This is the applications of this. So by using this one, you can find the any power of A. It may be 100, 1000, 1 lakh. You can find out any power of A. So this is the applications of diagonalizations of the matrix. Clear? अब हम देखिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं. सेम क्वेश्चन हमने लिया, इसी क्वेश्चन में आगे चलते केले हैमिल्टन थ्योरम. केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम. ये थ्योरम आपको क्या कहेगी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन.
इफ आई एम सेइंग ए, अगर हमने यहाँ सेम मैट्रिक्स लिया जो हमने पहले लिखा आपके पास, सेम मैट्रिक्स ले लीजिए, दैट इज 2 1 1, ये हो गया 0 1 0 एंड दिस इज 1 1 2, सेम मैट्रिक्स मैंने लिया दिस वन। एंड इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, देखिए इक्वेशन हमारे पास आई थी यहाँ पे ए लैम्डा क्यू माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 lambda minus 3 equal to 0. What is the Cayley-Hamilton theorem said? Cayley-Hamilton theorem said that if we replace lambda by a and this last term by 3i constant into I, so that means this say a cube minus 5a square plus 7a minus 3i, it will be equal to null matrix. तो कैलेन-मेटन थ्योरम क्या कहती है हमें? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। लैम्डा की जगह ए रख दें और लास्ट में जो कांस्टेंट है उसके साथ में आई ले लें, राइट। तो इसमें देखिए 3 तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अभी तक आए हैं। अगर आप देखें लास्ट ईयर के लास्ट 2 ईयर से कैलेन-मेटन थ्योरम पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए एग्जाम में, एक ट्यूब में। तो पहला क्वेश्चन इसमें हो सकता है वेरीफाई थ्योरम। वेरीफाई में आपको क्या करना है, ए क्यूब की वैल्यू रखिए, ए स्क्वायर रखिए, ए रखिए, आई रखिए, और आपको बताया कि मान लो मुझे 3i निकालना है, तो 3i क्या होगा, 3i होगा सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 0 0 0 3 0 0 0 3 लाइक दिस। ये सारी वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नल मैट्रिक्स प्रूफ कर देगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे कहेगा फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई है, इसमें आप ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए वी गेट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, और यह आ जाएगा माइनस ऑफ 3a इनवर्स दिट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। यहाँ से आप ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इनवर्स हो जाएगा मेरे पास देखिए 1/3 and we get from here a square minus 5a plus 7i। इसको सोल्व करके बता देंगे तो ये जो मैट्रिक्स आएगा दैट इज ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स। समटाइम्स कुछ हो सकता है आपसे कोई दूसरी पावर पूछ ले, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ a की पावर -1 2, दैट मीन्स a की पावर अगर -2 आपसे फाइंड आउट कराए तो ए इनवर्स निकाल के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर -2 फाइंड आउट हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए पिछले 2 ईयर में आपकी बात अगर देखें यहाँ से। इस बार मुझे लगता है कि आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में भी आपका पॉसिबल है एग्जाम में आए, तो दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इट मे गिव 20 मार्क्स, इट मे गिव द 10 मार्क्स और 15 मार्क्स, राइट। थर्ड हमारे पास है एक गिवन, हमारे पास इक्वेशंस होगी, गिवन फंक्शन होगा, आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वन। दैट मीन्स लेट अस सपोज आई से a की पावर 8 माइनस 5 a की पावर 7 प्लस 7 a की पावर 6 माइनस 3 a की पावर 5 प्लस a की पावर 4 माइनस 5a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर माइनस 2a प्लस i। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स फंक्शन। इतना बड़ा मैट्रिक्स फंक्शन है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 लेना है। जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था दिस वन, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इसको एज ए डिवाइजर मान लीजिए, दिस एज ए डिवाइजर ले ले। इससे आप ये जो फंक्शन आपको गिवन है इसको आप डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या होगा, इसको सोल्व करके आपकी इक्वेशन आएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे दिस वन मैंने यहाँ पे ले लिया, देखिए a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a, और यह आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 3i। इसको एज ए दिस ले लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए इस पूरे फंक्शन से। जो आपको फंक्शन ऊपर गिवन है, जो भी मैट्रिक्स फंक्शन जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है उसको यहाँ लिख दीजिए। इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए a की पावर 8 माइनस 5 a की पावर 7 प्लस 7 a की पावर 6 माइनस 3 a की पावर 5 प्लस a की पावर 4 माइनस 5 a क्यूब प्लस
8a² माइनस 2a प्लस i, इसको डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट टर्म a³, ये a की पावर 8, a की पावर 5 टाइम चला दीजिए इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर 8 माइनस 5, a की पावर 7 प्लस 7, a की पावर 6 माइनस 3, a की पावर 5। इस a की पावर 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए। ये आ गया दिस वन, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपका सब का सब कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। वी गेट दिस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, दिस कैंसिल दिस। हमारे पास क्या बच गया यहाँ से, वी गेट a की पावर 4 माइनस 5a³ प्लस 8a² माइनस 2a प्लस i, वी गेट दिस वन। अब देखिए a³ से a की पावर 4 को अगर आप इसमें कट करें तो कितने टाइम्स होगा, a टाइम्स, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्लस a लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, a की पावर 4 माइनस 5a³ प्लस 7a² माइनस 3a, माइनस कर दें इसको, साइन चेंज कर दीजिए माइनस के लिए, माइनस प्लस माइनस प्लस, कैंसिल आउट, सेकंड कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, a² आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास प्लस a, और ये ऊपर से आ जाएगा मेरे पास प्लस i, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप a² a और i की वैल्यू रख देंगे तो यही हमारे पास फाइनल आंसर रहेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स फंक्शन। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके बता सकते हैं। ओके, अब देखिए मान लेते हैं कि आपसे कह रहा है कि फाइंड द, अब हम 2x2 एक मैट्रिक्स लेके सोल्व करके देखते हैं क्या 2x2 मैट्रिक्स हम सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ये था हमारे पास 3x3, अब ले लीजिए 2x2। मान लीजिए 2x2 मैट्रिक्स हमें लेना है। टू बाई टू के लिए यहाँ पे हो जाएगा, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स आपको दिया है 5 4 1 2। फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स, फाइंड मॉडल मैट्रिक्स इफ पॉसिबल। तो हमने क्या कहा इसको, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। दिस इज अ 2 क्रॉस 2। इसके लिए इक्वेशन क्या बताई थी मैंने आपको, इक्वेशन लिख दीजिए λ² माइनस c1 लैम्डा प्लस c3 इक्वल टू 0। c1 क्या था, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 7। c2 क्या था, c3 क्या था हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ a। और डिटरमिनेंट ऑफ a क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, दूसरा क्या है कि जैसे हम कोई क्वेश्चन करेंगे मैट्रिक्स का, ये जो जैसे अपने यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट की दिस वन, यहाँ से जैसे फाइंड आउट किया, ये जो वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे आपको चेक जरूर करना है। चेक करने के लिए ये जो वैल्यू आई है इसको आपको चेक करके बताना है। 3 1 1 आया है तो इसके लिए फर्स्ट चेक होगा सम ऑफ लैम्डा i। ये क्या होगा, ये होना चाहिए ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स 3 प्लस 1 प्लस 1 5। और ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स भी क्या था मेरे पास, 5 था, राइट। एंड दूसरा आपको चेक लगाना है इसमें प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा i। ये क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आपके सेटिस्फाइड हो जाए तभी आप इसमें आगे सोल्व करें, अदरवाइज हमारे मार्क्स यहाँ से क्या होंगे, कट जाएंगे। तो इसी चीज को हम नीचे चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आगे देखिए इक्वेशन यहाँ से हो जाएगी मेरे पास, दिस इज इक्वल टू λ³ माइनस 7 सॉरी λ² माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आपने डिग्री 3 लिया था वहाँ पे डिग्री 2 ले लीजिए और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 6,1। सबसे पहले मैंने लिया लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए आइगन वेक्टर 6 करिए, a माइनस लैम्डा i x इक्वल टू 0। 0 मीन्स कॉलम वेक्टर 0, ठीक है। तो a माइनस लैम्डा डायगोनल पे 6 को माइनस कर दें, क्या आएगा बताएं, वी गेट 5 माइनस 6 माइनस 1 4 1 2 माइनस 6 माइनस 4।
इस केस में क्या होगा, जैसे लास्ट केस में हमने क्या किया था, हमने वहां पे वी यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो रो है ये आपकी ऑलवेज डिपेंडेंट आएंगी ही आएंगी। अगर आपकी आइगन वैल्यू क्या है, सेम है, तो उस केस में हो सकता है दोनों रो आपकी जीरो आ जाए या दोनों रो डिपेंडेंट आए, दोनों में से एक केस आएगा। अगर आपकी दोनों रो डिपेंडेंट है तो अगर मैं इसकी रैंक की बात करूं, रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई क्या है, इसकी रैंक है 1। क्यों, एक बार माइनस करेंगे तो 1 रैंक आ जाएगी, राइट। बहुत डिपेंडेंट इक्वेशन से रैंक 1 का मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना हुआ बताए, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर था 2, रैंक है 1 1, एक को आपको आर्बिट्री मानना। कोई भी एक इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन हो जाएगी देखिए -x1 प्लस 4x2 दैट इज इक्वल टू 0। 2/2 केस में या तो एक आर्बिट्री आएगा या दो आर्बिट्री आएंगे, राइट। दो वाला भी मैं एग्जाम्पल आपको लेके बता दूंगा। तो हमने कहा लेट x2 इक्वल टू, आपने कहा k, तो x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 4k, तो आपका आइगन वेक्टर आ जाएगा मेरे पास 4 1 आ जाएगा, 4 1 था आइगन वेक्टर। अब मैंने कहा लैम्डा इक्वल टू, मैंने ले लिया मान लीजिए आपके पास 1। अब मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, मैट्रिक्स था मेरे पास 5 4 1 2, 5 4 1 2 में 1 माइनस करे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 4 1 2 का क्या हो जाएगा 1 1। अगेन आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों हमारे पास आइगन वेक्टर क्या है, डिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। जैसे मैंने आपको बताया पहले से कि ये डिपेंडेंट ही ऑलवेज आएंगे। तो कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने रहेंगे, एक रहेगा, तो आई कैन राइट x2 इक्वल टू k, x1 इक्वल टू माइनस k, तो आइगन वेक्टर हो जाएगा मेरे पास -1 1 द आइगन वेक्टर। तो मॉडल मैट्रिक्स P क्या हो जाएगा मेरे पास, P होगा 4 1 -1 1, दिस इज द मॉडल मैट्रिक्स P। क्लियर। और देखिए, और हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया दिस वन 3 0 0 3, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर ए माइनस, अगर आप लेमडा आई करेंगे, अगर डायरेक्ट मैं ए माइनस लेमडा आई करूं तो क्या होगा, ये आएगा मेरे पास देखिए यहाँ पे 3 माइनस लेमडा 0 0 3 माइनस लेमडा, वी गेट दिस वन। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस लेमडा होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो वी गेट लेमडा इक्वल टू 3 3। एक हमारे पास एक रूल होता है कि अगर हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, इन ईच केस आइगन वैल्यूज विल बी इक्वल टू द डायगोनल एलिमेंट। और यहाँ डायगोनल एलिमेंट क्या थे, 3 और 3 थे, तो इसका आंसर 3 3 ही आएगा, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हमें देखना है आइगन वेक्टर। तो आपने कहा लैम्डा इक्वल टू 3, वी सपोज लैम्डा इक्वल टू 3, तो 3 आप रखेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए 0 0 0 0 आ रहा है। 0 0 0 0 का मतलब बताएं, इसकी रैंक क्या हो गई, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएंगे 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, यानी दोनों आर्बिट्री आपको लेना है, दोनों को आर्बिट्री मान लेते हैं। x2 इक्वल टू हो गया k1 और x1 इक्वल टू हो गया k2। तो हमने क्या रूल बताया था, एक बार एक को 1 दूसरे को 0, तो एक को 1 ले लीजिए। तो मान लीजिए मैंने कहा कि आपके पास k2 1 है, तो k2 1 है तो क्या वेक्टर आ जाएगा 1 0 आ जाएगा। क्यों, हमने कहा k2 इक्वल टू 1 k1 इक्वल टू 0। अब उल्टा कर देते हैं, k1 इक्वल टू 1 k2 इक्वल टू 0, अगर k1 1 k2 0 है तो क्या वेक्टर आ जाएगा 0 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेक्टर है 1 0 0 1। तो यहाँ आप रूल एक समझ सकते हैं कि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो और डायगोनल मैट्रिक्स हो, इन दोनों ही केस में जो आइगन वेक्टर आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, वो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम ही आएंगे। सेम तरीके से अगर आप देखिए, अगर मैं 3/3 की बात करूं, मेरे पास है मान लीजिए 2 लेटर सपोज आई से 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये है मान लीजिए मैट्रिक्स।
इस मैट्रिक्स के आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, डायगोनल एलिमेंट होंगे, दैट इज 2 2 2 ही होगा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन हम कोई भी दे सकता है। लैम्डा इक्वल टू 2 अगर आप रखें तो क्या मैट्रिक्स है बताए, यह है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो रैंक क्या हो गई, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 0। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गई, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 0 हो गई, ऑब्वियस सी बात है। इफ आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपकी 0 हो जाएगी तो क्या होगा, कितने आर्बिट्री हुए, नंबर ऑफ आर्बिट्री इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर इज 3 एंड रैंक इज 0 3। तीनों के तीनों आर्बिट्री होंगे। जब आपके तीनों आर्बिट्री होंगे तो क्या लिखेंगे आप, तीनों को आर्बिट्री मान लीजिए। तीनों को आर्बिट्री मैंने माना, मैंने कहा लेट x1 इक्वल टू k1, x2 इक्वल टू k2 एंड x3 इक्वल टू k3। तीनों मैंने आर्बिट्री मान लिया। एक को 1 ले लीजिए, बाकी सबको 0 ले लीजिए। k2 इक्वल टू 0, k3 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, वेक्टर मेरे पास क्या मिला, वेक्टर मेरे पास मिल गया 1 0 0। अब उल्टा कर दे, अब कहिए कि k1 0, k2 को इस बार 1, बाकी दोनों 0, k3 इक्वल टू 0। वेक्टर क्या आ गया मेरे पास 0 1 0। सेम तरीके से अगर आप इसमें चेंज करें तो क्या आएगा, अब लास्ट वाले को 1 ले लीजिए, ये था देखिए k1 k2 k3, k3 1, बाकी सब आपका 0। वेक्टर क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से वेक्टर आ जाएगा 0 0 1। यू कैन सी दैट ये कहता था हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स था। तो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में हमारा जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम आएंगे, 1 0 0 0 1 0 एंड दैट इज हो गया हमारे पास 0 0 1। ओके, अब एक और मैट्रिक्स लेके देखते हैं, 2 by 2 मैट्रिक्स लेता हूँ। लेट अस सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये है देखिए 2 1 एंड यहाँ पे ले लेता हूँ 0 2। ये मैट्रिक्स है मान लें, कैसा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लैम्डा क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। जैसे हमने बताया कि लैम्डा क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट हो। जब ये आपका डायगोनल एलिमेंट होगा तो डायगोनल एलिमेंट में, डायगोनल एलिमेंट क्या है 2 2 है, तो आइगन वैल्यूज की क्या रहेंगी 2 2 ही रहेंगी। अब देखिए अगर मैं कहूँ लैम्डा इक्वल टू, मैंने रख दिया 2, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पे क्या है, लैम्डा इक्वल टू 2 पे 2 - 2 0 1 0, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ गया 0। तो इसको आप अगर x1 x2 के साथ देखिए, x1 x2 रैंक कितना है बताए, रैंक इसका मेरे पास है 1, कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट है 1 रैंक हो गई। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना हो गया आपके पास, रैंक माइनस दैट इज ऑर्डर माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना है 2, तो 2 -1 इक्वल टू 1, एक आर्बिट्री लेना है। अगर इक्वेशन के हिसाब से देखिए ये है x1, ये आपके पास है x2, तो यहाँ से आ गया x2 इक्वल टू 0, तो x1 को क्या लेना है, x1 को k लेना है। तो वेक्टर क्या आएगा 1 0। तो आप देख सकते हैं कि आइगन वैल्यू तो हमारे पास 2 है, रिपीटेड आइगन वैल्यू है, लेकिन आइगन वेक्टर क्या है मेरे पास, सिंगुलर। तो इस तरीके से आप इसमें 2 टॉपिक को हमने आज कवर किया, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, केलर-हैमिल्टन थ्योरम। एंड केलर-हैमिल्टन थ्योरम में जैसे मैंने आपको बताया 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पहला वेरीफाई, दूसरा इनवर्स, थर्ड फाइंड द मैट्रिक्स फंक्शन। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशंस। आप इनको अच्छी तरह करें, कुछ क्वेश्चन आप इसके सोल्व करें। एंड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस मेरा है, देखिए आपका पंकज JNU numeric 1@gmail.com। इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कहीं, अगर आप कोई भी क्वेरीज हो, कोई आपका हो, राइट। तो अगर आप, इफ़ यू जस्ट लाइक दिस वीडियो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो just distribute your friends, right? Okay, thank you very much.